Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with the series of tense. Earlier we have done up to the future continuous tense affirmative sentence, and today we are going to start future continuous tense interrogative sentence. For time being, I have stopped the series of the tense because it was a huge demand of the viewers and my students to make the videos on the writing skills. That's why I stopped this series. But once again, today I am going to start this series of tense, that is future continuous tense interrogative sentence. So let's start without wasting any time. First we will see the formula of the interrogative sentence, then examples, then some of the Hindi sentences and some of the English sentences we will translate from Hindi to English, English to Hindi. Okay, let's start. The formula of the future continuous tense interrogative sentence is, first we will write helping verb is am are. सबसे पहले हम लोग helping verb is am are को लिखेंगे, then subject, then V1, then ing, then object, then question mark. What will be the formula? Is am are helping verb, then subject. Sorry. This will not. I am just writing the formula of the present continuous tense. It is future continuous. So then first it will be will shall. Future continuous. I just distracted by someone. That's it's happened. Will shall plus subject plus be plus V1 plus ing plus object plus question mark. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, लेट्स स्टार्ट. इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज WH टाइप, देन वी विल स्टार्ट विद WH वर्ड. फर्स्ट वी विल राइट WH वर्ड, then will shall, then will shall, then subject, then be, then B1 plus ing plus object plus question. Okay guys, if simple interrogative is there, so we will write this formula will shall plus subject plus be plus B1 plus ing plus object plus question mark. If WH type interrogative is there, we will follow this formula WH words will shall plus subject plus be plus B1 plus ing plus object plus question mark. Okay, now we will see some of the examples of future continuous tense interrogative sentence. Okay, so first example, will he be writing an article? Question mark. Will he be writing an article? ये सिंपल इंटरोगेटिव है.
हमने सबसे पहले फॉर्मूले को फॉलो किया, विल शैल में से कोई एक लगाना है तो हमने विल लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, ही के साथ विल ही लगेगा। फिर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिया ही। फिर हमको क्या लिखना था, बी लगाना था, बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना था तो राइट फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगा के लिख दिया, राइटिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना था एन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना था, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके गाइस, इफ वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इनटू हिंदी, तो द हिंदी विल बी क्या वह एक लेख लिख रहा होगा, क्या वह एक लेख लिख रहा होगा। ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। shall we be playing cricket? Shall we be playing cricket in the ground? In the ground? Question mark. Okay guys, shall we be playing cricket in the ground? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया shall, क्योंकि यहाँ बी सब्जेक्ट है, बी के साथ shall का यूज होता है। फिर उसके साथ बी ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट लगा दिया, फिर इन द ग्राउंड, ग्राउंड में। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये सेंटेंस हो जाएगा। ओके गाइस, एक WH वाला करके देखते हैं। Why will you be going to America Why will you be going to America tomorrow? Question mark. Why will you be going to America tomorrow? हमने जैसे लिखा था WH वर्ब पहले कर लिया, फिर विल शैल में से एक विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बी को ऐड कर दिया, फिर गोइंग, गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू अमेरिका ऑब्जेक्ट टुमारो, कल। ठीक है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो तुम कल अमेरिका क्यों जा रहे होगे। ओके गाइस, तुम कल अमेरिका क्यों जा रहे होगे। Why will you be going to America tomorrow? तो we are doing future continuous tense, interrogative sentence। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH टाइप होगा तो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B1 प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। और उसके एग्जांपल हो गया विल ही बी राइटिंग एन आर्टिकल, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड,
Why will you be going to America tomorrow? Let's practice some of the Hindi sentences and translate it into English. Let's see. Okay guys, I have written here 5 sentences in Hindi. Now we will translate it into English. First sentence is, क्या वे कल परीक्षा में पास हो रहे होंगे? सेकंड सेंटेंस इज, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे? थर्ड सेंटेंस इज, शिकारी जंगल में शिकार क्यों कर रहा होगा? फोर्थ सेंटेंस इज, अध्यापक कल कक्षा में क्या पढ़ा रहा होगा? एंड फिफ्थ सेंटेंस इज, पिताजी ऑफिस कब जा रहे होंगे? तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. क्या वे कल परीक्षा में पास हो रहे होंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दे. तो दे के अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल दे. फिर हम बी ऐड करते हैं, विल दे बी पास हो रहे होंगे तो पासिंग. पास को आईएनजी ऐड कर देंगे तो पासिंग इन द एग्जाम टुमारो. हिंदी था, क्या वे कल परीक्षा में पास हो रहे होंगे? तो हमने लिखा विल दे बी पासिंग इन द एग्जाम टुमारो. क्या वे कल परीक्षा में पास हो रहे होंगे? ओके. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे? तो बच्चों को लिखते हैं चिल्ड्रेन, इनके साथ आएगा विल. तो विल चिल्ड्रेन बी मेक अ नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना, तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा. मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास कक्षा में. ओके. तो क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे? हमने लिखा विल चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. नेक्स्ट सेंटेंस है, शिकारी जंगल में शिकार क्यों कर रहा होगा? अब ये WS टाइप वर्ड है क्योंकि इसमें बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आया है. क्यों? तो सबसे पहले इसी वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वाई. क्यों को हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं वाई. अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? शिकारी. शिकारी के साथ विल आएगा तो वाई विल. फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हंटर. वाई विल हंटर. फिर बी लगाएंगे बी हंटिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में. ओके. तो शिकारी जंगल में शिकार क्यों कर रहा होगा? तो इसका हो जाएगा वाई विल हंटर बी हंटिंग इन द फॉरेस्ट. ओके गाइस. अध्यापक कल कक्षा में क्या पढ़ा रहा होगा? तो इसमें क्या पढ़ा रहा होगा, क्या बीच में आया है? इंटरोगेटिव वर्ड है. सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट will teacher be teaching in the class tomorrow? क्या था? अध्यापक कल कक्षा में क्या पढ़ा रहा होगा? तो व्हाट विल टीचर बी टीचिंग इन द क्लास टुमारो. ओके. लास्ट सेंटेंस है, पिताजी ऑफिस कब जा रहे होंगे? ये भी WS टाइप है क्योंकि यहाँ लास्ट में इंटरोगेटिव कब आया है. तो कब की इंग्लिश होती है when will father be going to office? पिताजी ऑफिस कब जा रहे होंगे? So when will father be going to office? Okay guys, we have translated these 5 Hindi sentences into English. I hope it is clear to all of you. Now we are going to see interrogative negative sentence. Okay, let's see. Okay guys, now we will see future continuous tense.
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसका सेम रहता है, केवल नॉट लग जाता, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विल शैल होगा पहले, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड होगा तो इससे पहले WH वर्ड जुड़ जाएगा। यहां लिख भी देते हैं हम WH वर्ड प्लस सेम एज एबव, सेम एज एबव, जैसे ऊपर लिखा हुआ वही कॉपी कर देना है, क्या WH वर्ड ऐड कर देना है। क्या है फॉर्मूला, विल शैल फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट देन बी। अभी तक क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी लगाते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट और बी के बीच में आएगा नॉट, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। Will you not be coming tomorrow? In the party? In the party. Question mark. क्या लिखा हमने? Will you not be coming tomorrow in the party? फॉर्मूले में यही था, विल शैल पहले लगाएंगे, विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया, कमिंग हो गया, फिर टुमारो लगा दिया, इन द पार्टी। ओके, विल यू नॉट बी कमिंग टुमारो इन द पार्टी, या इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, विल यू नॉट बी कमिंग इन द पार्टी टुमारो, विल यू नॉट बी कमिंग इन द पार्टी टुमारो। टुमारो को लास्ट में ही ऐड करें तो ज्यादा सुटेबल है। ओके, तो क्या हो गया, विल यू नॉट बी कमिंग इन द पार्टी टुमारो। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कल तुम पार्टी में नहीं आ रहे होगे। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। Shall I not be attending class? Shall I not be attending meeting कर लो, क्लास meeting tomorrow या टुडे, जो भी करना है, द नेक्स्ट डे, कुछ भी करो। तो शैल आई नॉट बी अटेंडिंग क्लास, सॉरी क्लास मीटिंग बहुत हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा मीटिंग। शैल आई नॉट बी अटेंडिंग मीटिंग टुमारो, क्या मैं कल मैं मीटिंग में या सभा में उपस्थित नहीं हो रहा हूँगा, नहीं
Okay guys, so these are the future continuous tense, interrogative negative sentence. I have told you formula and example. I hope it is clear to all of you. Even if any doubt is there, you can write me in the chat box or message me directly. I hope you have enjoyed the session and understood the topic very well. Okay, thank you very much. Like and subscribe my videos so that you can get the videos on time and benefited with it. Okay, thank you.